Hello everyone, welcome to Learning Spot by Mehak. So today we are going to cover part 11 of NTA UGC NET series जहाँ पे हम पेपर 2 कॉमर्स के 25 most important MCQs करेंगे for 2023 and 2024. I hope this video will help you in your preparation. नाउ अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैथ्स द फॉलोइंग। हमारे पास लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 है। फर्स्ट है लीगल स्ट्रक्चर और हमें दूसरी लिस्ट में बताना है कि ये कौन से एनवायरनमेंट के अंदर आता है। लीगल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये एक तरह से मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, तो फर्स्ट का आएगा सी। पावर स्ट्रक्चर बेसिकली एग्जिस्ट करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आएगा इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। और सप्लायर आएगा हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, तो करेक्ट आंसर आएगा सी। Now next question, which of the following statement is incorrect? Change in the management of ownership is not necessary condition for privatization. तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन करना है तो यहाँ पे जो ओनरशिप है एक तरह से चेंज होती है, पब्लिक सेक्टर से हमारी प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाती है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के पास जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आगे भी रीड आउट कर लेते हैं। ओपनिंग द डोर ऑफ लोकल इकोनॉमी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन इज हैंडिंग ओवर द ओनरशिप ऑफ रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज टू द प्राइवेट सेक्टर, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमारा आंसर आएगा ए। Now next question, assertion and reasoning का, as per the new trade theory, the concept of economies of scale and product differentiation can be used to explain the pattern of trade. Yes, this statement is correct. As per the new trade theory, हम economies of scale and product differentiation को एक तरह से use कर सकते हैं to explain the pattern of trade. Reasoning, the benefit to countries arise in the form of market share from reduced cost and improved technical expertise which are not available to late entrants. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारे करेक्ट है, बट एक्चुअल में यहाँ पे न्यू ट्रेड थियोरी को ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा रीजन, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा बी। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। Now next question, excise taxes are sometimes also referred to as sin taxes, तो yes this statement is बिल्कुल correct, ठीक है, excise taxes को हम sin taxes भी बोलते हैं। Now government imposes such taxes to raise their prices to discourage their consumption, yes this statement is also correct, और ये अच्छे से explain भी कर रहा है assertion को, तो इसका correct answer आएगा A, क्योंकि ये बेसिकली लगता है टबैको प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, अल्कोहल पे, जिसकी कंजम्पशन जो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, डिस्करेज करना चाहती है। Now, which allow duty-free import of inputs which are physically incorporated in export products, making normal allowance for wastage. तो इसका करेक्ट क्या आंसर क्या आएगा? ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, ड्यूटी रिमिशन स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम या फोकस मार्केट स्कीम। इसका करेक्ट आंसर है सी, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ठीक है। ये एक तरह से अलाउ करता है imports of input to be made duty free after taking into consideration normal allowance for wastage of if such input goods are physically incorporated in the production of an export product, means अगर वो input products हमने इंडिया में लाए हैं और उससे हम वो प्रोडक्ट जो है बना रहे हैं आगे एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए ये हमारा है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम।
Now, next question, the combination of greenfield investments and merger and acquisition can be categorized as, इसे हम brown field investment बोलेंगे, ठीक है. Combination of greenfield investment, merger and acquisition को brown field investment बोलते हैं, ठीक है. As per the asset augmentation classification, FDI can be classified as green investment. As per the asset acquiring view, it can be a merger acquisition which, when combined together, it can lead to a brownfield investment. ठीक है. Now next question, NAFTA is a regional economic integration of which level? FTA, political union, economic union या common market? इसका correct answer है FTA. FTA is formed when two or more nations partially or fully abolish custom tariff among themselves. ठीक है. NAFTA हमारा होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है. और एंड इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट FTA फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है. तो ये बेसिकली कहाँ पे होता है, जब दो नेशन आपस में कस्टम टैरिफ्स जो हैं वो बिल्कुल अबॉलिश कर देते हैं, मतलब ट्रेड जो है फ्री हो जाता है उनके लिए, ठीक है. बट द डिसीजन रिगार्डिंग टैरिफ पॉलिसी फॉर नॉन मेंबर नेशन आर टेकन इंडिपेंडेंटली. Now next question, which of the following is not correct for MIGA? MIGA हमारे होती है मल्टीलेटरल इंटरनेशनल गारंटी एजेंसी, ठीक है. तो एक तरह से इट प्रोवाइड पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, यस ये प्रोवाइड करती है. इट प्रोवाइड क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटीज, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर कंट्री, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. इट डज नॉट हैव इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एज इट्स मेंबर, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है. उनके पास इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज भी होती हैं, ठीक है. सॉरी, इसकी करेक्ट फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है. ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी है और इंडिया इसका मेंबर बना जनवरी 1994 में, ठीक है. और इट इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. Now next question, which of the following is the highest decision making body at WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? जनरल काउंसिल, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट या सेक्रेटरीट एंड डायरेक्टर जनरल? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है. WTO में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हमारी है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है. Dispute settlement comes under the ministerial conference. Now next question, which principle states that we should record revenues only when the possibility of earning such revenue has been established after due consideration? तो ये हमारा आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस में, ठीक है. एक तरह से ये हमारी कन्वेंशन भी है, ठीक है. और प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस हमें बोलता है कि जब रेवेन्यू हमें पता चल गया कि आएगा, पॉसिबिलिटी है, तभी हम उसे रिकॉर्ड करें, अदरवाइज ना रिकॉर्ड करें, ठीक है. मींस फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम आज ही रिकॉर्ड करें, ठीक है, जैसे हम प्रोविजंस बनाते हैं. बट फ्यूचर में होने वाले रेवेन्यूज को हम आज रिकॉर्ड नहीं करते, अगर वो कंफर्म है तभी हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस. इसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, तो ये आपने याद रखना है, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस एक ही होता है, ठीक है. Which one of the following is not a characteristics of
कैपिटल प्रॉफिट, इनमें से कौन सा कैपिटल प्रॉफिट नहीं है? इट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इट इज irregular in nature, yes, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. इट इज अर्न फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का है, बाकी सारे हमारे क्या हैं, कैपिटल नेचर के हैं, तो डी आएगा इसका आंसर. The total number of Indian accounting standard as of today is, तो 41 हमारे टोटल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है. The Ministry of Corporate Affairs has come out with the 41 Indian accounting standard which are applicable from financial year 2016 and 17 on a mandatory basis for certain with the certain exceptions, ठीक है. Now next question, ABC Limited has 3 items of stock costing ₹100 on 31st December 2018. अभी यहाँ पे ABC Limited के पास 3 आइटम स्टॉक में पड़ी है जिसकी कॉस्ट ₹100 ईच है on 31st December 2018 एंड जनरल प्राइस इंडेक्स 1st जनवरी को था 100, 15th जनवरी को था 112 एंड 31st जनवरी को है 130. And the replacement cost of each item of stock was 122 on 15th January 2018 and 140 on 31st January 2018. तो उसकी net realizable value of each item was 180 on 31st January 2018. तो what is the value of stock on 31st December 2018? तो उसकी वैल्यू क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग. तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम यहाँ पे दी गई है ऑन 31st जनवरी 2018 हमारे पास है 140, ठीक है. तो हम क्या करेंगे 140 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 420, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर है 420. Now next question, which of the following disclosures shall be made as per the Indian accounting standard on financial reporting in hyperinflationary economies when the economy ceases to be hyperinflationary? Whether the financial statement are based on historical cost approach or current cost approach, duration of hyperinflationary situation, the fact that the financial statement of previous period have been restated for the changes in the general purchasing power of the functional currency. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है इनमें से कौन सी एक तरह से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होते हैं एज पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, इन केस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज. तो यहाँ पे ये तीनों ही एक तरह से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी. अभी अगर हम बात करें हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, हाइपर इन्फ्लेशनरी का मतलब है रैपिड एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल जनरल प्राइस इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है. Indian Accounting Standard 29 applies to any entity whose functional currency is the currency of hyperinflationary economy. In a hyperinflationary environment, financial statement including comparative information must be expressed in unit of functional currency current as at the end of reporting period. As per the standard, the following disclosure are mandatory to be made. तो ये सारे जो हमने तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ी जो, तो ये तीनों ही हमारे क्या है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच या करंट कॉस्ट अप्रोच, ठीक है, ये हमें मेंशन करना होता है. ड्यूरेशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को मेंशन करना होता है कि क्या कितना पीरियड में वो सिचुएशन चला है, ठीक है.
प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो भी हमें रीस्टेट करना होता है, और क्या चेंजेस आए हैं जनरल परचेजिंग पावर में ऑफ फंक्शनल करेंसी, तो ये भी हमें एक तरह से मेंशन करना होता है। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग 29, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 अप्लाई होता है to any entity whose functional currency is the currency of hyperinflationary economy। तो ये आपने याद रखना है, ये स्टैंडर्ड भी आ सकता है कि हाइपर इन्फ्लेशनरी स्टैंडर्ड कौन सा है हमारा। ठीक है, now under the capitalization method of calculation of goodwill is equal to average profit into number of year purchase। no, कैपिटलाइजेशन मेथड में अभी हमारे दो मेथड आ जाते हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे और एक सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो मेथड है उसका है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन का नहीं है। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये सुपर प्रॉफिट मेथड का है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये भी नहीं है। टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट, ये हमारा करेक्ट आंसर है कैपिटलाइजेशन मेथड का। Now next question, A, B, C share profits and losses in the ratio of 2:2:1। B retire, यहाँ पे B retire हो रहा है and her share is purchased by A and C in the equal ratio। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो 2/5 हमारा शेयर है बी का, तो इक्वल रेशो उनकी क्या है, गेनिंग रेशो है ए और सी की। तो यहाँ पे कितना कितना शेयर उन्हें मिल रहा है, इसका 1/2 कर लेंगे। ठीक है, तो 2/10 दोनों की जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 2/5 है ए का ऑलरेडी शेयर, उसमें 2/10 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 6/10। और ऐसे ही हम अगर सी का कैलकुलेट करें, ठीक है, सी का आ जाएगा 1/5 प्लस 2/10। तो यहाँ पे 4/10 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आया 6:4। 6:4 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर आएगा 3:2। ठीक है, now next question, which of the following event does not fall under section 42 of partnership act। section 42 of partnership act हमारा dissolution of firm के basis पे, dissolution और happening of contingent event। तो death of partner, ये expiry of fixed period, insolvency of partner, misconduct of a partner। तो यहाँ पे मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर जो है ये सेक्शन 42 के अंडर नहीं आता, ये हमारा सेक्शन 44 के अंडर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। Section 42 of Indian Partnership Act 1932 deals with the dissolution of firm in the following cases: on expiry of fixed period, on death of partner, insolvency, या on finishing of purpose for which firm was incorporated। तो यहाँ पे मिसकंडक्ट वाला पार्ट नहीं आता, वो हमारा सेक्शन 44 के अंडर आता है, डिसोल्यूशन बाय अ कोर्ट। Now next question, which of the following statement is correct? Share premium is a distributable reserve. Share premium can be used for the payment of dividend to the shareholder. No. Share premium can be used for the payment of preliminary expenses. Yes. This statement is correct. Share premium can be used for writing off the discount allowed on the any issue of securities. Yes. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा
थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, शेयर प्रीमियम जो होता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, और ना ही हम उसे एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देते हैं। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आंसर आएगा डी। As per Section 52 of Companies Act 2013, share premium amount can be used toward the issue of unissued shares of company to the members of company as fully paid up bonus share. Bonus share हम issue कर सकते हैं, write off कर सकते हैं preliminary expenses, या write off कर सकते हैं कोई भी expenses, commission paid, discount allowed। ठीक है, एक तरह से प्रीमियम जो हम प्रोवाइड करते हैं ऑन द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, या रिडीमेबल डिबेंचर्स के टाइम पे प्रीमियम जो पे करते हैं उसके उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटीज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, now next question, what happened to the discount given on issue of share in case of forfeiture? अभी जब हम इशू करते हैं शेयर्स तो वहां पे डिस्काउंट दिया हमने, तो फॉरफीचर के टाइम पे हम उसका क्या करेंगे? तो जब इशू करते हैं डिस्काउंट हमारा डेबिट होता है, तो फॉरफीचर के टाइम पे वो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, उससे हम क्रेडिट कर देंगे, मींस इट इज अ रिटर्न बैक, राइट, रिटर्न बैक कर देंगे। ठीक है, now next question, the expected return under yield method is a ratio of expected profit and total share कैपिटल। अभी अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर यील्ड मेथड, तो रिटर्न तो आ रहा है, रिटर्न का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, अंडर यील्ड मेथड ये एक तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल का मेथड है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऐसे आप याद रखोगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, now next question, when the purchase consideration is calculated by subtracting the agreed value of liability taken over from the aggregate asset taken over at the agreed value, this method is known as net asset method, net payment method, net intrinsic value method या lump sum method। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, net asset method। ठीक है, now next question, in internal reconstruction a new company is incorporated? No, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती, ना ही ओल्ड कंपनी लिक्विडेट होती है। ठीक है, नीदर अ न्यू कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड नॉर द ओल्ड कंपनी इज लिक्विडेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। ठीक है, एक तरह से टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, वेयर इन रिकंस्ट्रक्शन इज डन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और अगर हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें वहां पे एग्जिस्टिंग कंपनी जो है अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो लॉस कर देती है। Now next question, the difference between actual sales and break even sale is known as PV ratio, contribution margin, पीई रेशियो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। ठीक है, now next question, standard price less actual price multiplied by actual quantity is। अभी यहाँ पे ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे प्राइस प्राइस है ना, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, तो यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम इसे बोलेंगे कि प्राइस का कितना वेरिएंस है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। Now next question, the International Court of Justice
इज लोकेटेड इन जिनेविया, दोहा, हैग, वॉशिंगटन डीसी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हेज। ठीक है, नीदरलैंड में ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक।